Hello everyone, my name is Aarti and you're watching HW News. As the election in Uttar Pradesh is nearing, political pot is being stirred in Uttar Pradesh in a big jolt to the ruling BJP and Chief Minister Yogi Adityanath in the state. Swami Prasad Maurya has resigned from the post of cabinet minister. Yes, Swami Prasad Maurya, a key leader, a tall leader in the state of backward community, has resigned from the post of cabinet minister. Swami Prasad Maurya has sent his resignation to Governor Anandiben Patel. He was disgruntled with Yogi Adityanath's leadership for the last few months. In his resignation letter sent to Governor Anandiben Patel, Swami Prasad Maurya said, and I quote, and you can see the resignation letter on your screen right now, as Minister of Labour and Employment and Coordination, despite living in adverse ideology, I have discharged my responsibilities very diligently, but due to the gross neglectful attitude towards Dalits, backwards, farmers, unemployed youth, small and medium scale traders, I resign from the cabinet of Uttar Pradesh. Well, as the elections are drawing closer, the parties are now brainstorming over tickets and candidates. And this time around, BJP is looking to drop several sitting MLAs to fight the anti-incumbency of Yogi Adityanath government. And that also includes some of the cabinet ministers. So several MLAs are upset with the BJP, and those who anticipate that they may not get the ticket this time around might jump the ship. And Swami Prasad Maurya's case was no different. Soon after his resignation from the BJP, Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav shared a picture with him and wrote, Shri Swami Prasad Maurya ji, a popular leader fighting for social justice and equality, heartily welcome and greetings to all the other leaders, workers and supporters coming to Samajwadi Party. Now, Akhilesh Yadav is clearly indicating that Swami Prasad Maurya has indeed joined the Samajwadi Party. He has joined hands with Akhilesh Yadav. However, there might be more people coming in from the BJP in Samajwadi Party just a month before the crucial state goes for poll. Now let us also talk a little bit about Swami Prasad Maurya. Who is he and what he does? Swami Prasad Maurya is a tall leader of the backward community in the state, and he has been active in politics since the 80s. In the past, he has been the state president of BSP as well. He was the leader of opposition in Uttar Pradesh Legislative Assembly from 2012 to 2016. He is a 5 times MLA in the state. However, in August 2016, he had joined the BJP. However, now that he has quit the BJP and he has decided to join the Samajwadi Party, his daughter Sanghamitra Maurya is still a BJP MP from Badaun. Now, reportedly, Swami Prasad Maurya was in direct contact with Akhilesh Yadav. Discussion was going on for the last several days, and Akhilesh Yadav was reportedly directly looking into this case of several BJP leaders joining the Samajwadi Party, including the case of Swami Prasad Maurya. His resignation from the BJP is now being considered as a big setback for the BJP in the state, and the credit for bringing BJP to power in the last election goes to the backward caste. And this time, Akhilesh Yadav is also trying to divert this backward community, backward caste towards him. This is the reason that apart from the alliance with the smaller parties, he has also started a campaign to include Dalit leaders, backward community leaders in his party. Swami Prasad Maurya is a part of this campaign, but Swami Prasad Maurya may not be the only one. 2 more ministers can resign from the BJP government in Uttar Pradesh. Apart from Swami Prasad Maurya, there is speculation about the resignation of ministers Dharam Singh Saini and Dara Singh Chauhan. Both Dharam Singh and Dara Singh are considered to be of Maurya's camp. All the 3 are ministers in the Yogi government, but all the 3 have been big leaders of BSP and have also been ministers in the BSP government, and now they are also reportedly going to be joining the Samajwadi Party of Akhilesh Yadav. Now, what did exactly Swami Prasad Maurya said after he decided to jump the ship and join Samajwadi Party? Let us hear from himself. हेलो दलितों, पिछड़ों, अबे करेंगे यार, अभी कर देंगे, वो भी कर देंगे। बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने
योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। आज आप अखिलेश यादव से भी मिला है क्या? मिला है क्या अखिलेश यादव से भी? समाजवादी पार्टी आप जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फोटो ट्वीट की है, फोटो ट्वीट करके लिखा है कि सामाजिक न्याय के पैरोकार है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो साथ आ रहे हैं। अभी हमारी उनकी बातचीत होनी है और स्वाभाविक रूप से मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो कोई न कोई राजनीतिक फैसला तो लूंगा ही। इसी बीच मैं अपने प्रदेश के समर्थकों के साथ बातचीत कर रहा हूँ और जो उनकी आम राय होगी, कहाँ जाना है, किसके साथ खड़ा होना है, मैं उनके विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय एक दो दिन में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा, आपने पार्टी से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? मैं अभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हूँ। संघमित्रा जी भाजपा में सांसद हैं, उनका क्या स्टैंड होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है। इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया आपने? मैं अपने प्रदेश और देश के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं से बात करके जो भी उचित होगा, पार्टी में रहना होगा वो भी निर्णय लेंगे, कहीं और जाना होगा। क्या भाजपा के नेता से मुलाकात कर सकते हैं? कुछ और भी लोग आपके साथ जाएंगे, कुछ और भी लोग आपके साथ जाएंगे, कुछ और भी लोग जाएंगे। कौन आएगा कौन जाएगा, इस्तीफा देने के बाद कौन कौन संपर्क में आता है कौन नहीं आता है ये तय होगा। इसलिए बिना बातचीत किए मैं किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आखिर क्या वजह रही मौर्य जी, आखिर क्या वजह रही आपको आज आपको याद आया कि किस तरीके की स्थिति है? 5 साल गुजर गए पूरे। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन किया। तमाम विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहते हुए भी मैंने बिना किसी शिकन के निसंकोच विभागीय जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है आपकी क्या? मतलब क्या वजह क्या है? कहीं ना कहीं तो नाराजगी है। सरकार के मुखिया वही है, कह रहे हैं कि आप अपेक्षित सरकार के मुखिया वही है। व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एसोसिएशन करेंगे जी, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और इसके साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के साथ उपेक्षात्मक रवैया हुआ और इनके विरोध में कार्यक्रम चलाए गए, उसको देखते हुए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। लोग ये भी कहेंगे, लोग ये भी कहेंगे कि 5 साल पूरी सरकार में आप रहे, चुनाव सर पे है, आप अपने लिए नया राजनीतिक ठिकाना ले रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में कोई कोरप्शन नहीं की। 5 साल तक मैंने उसका निर्वहन किया। अब निर्वाचन आयोग ने उसमें जारी कर दी है हमको कहाँ रहना है, बीजेपी में रहना है या बीजेपी के बाहर जाना है, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, ये निर्णय अपने समर्थकों के साथ वार्ता करके मैं तय करूंगा। नहीं, अगर मान लीजिए बीजेपी आला कमान से कोई शीर्ष नेतृत्व फोन आए आपको मनाए, मान जाएंगे क्या? हम किसी से बात न करने का मैंने संकल्प नहीं लिया। हम बात सबसे करेंगे, लेकिन निर्णय क्या करना है हमारे कार्यकर्ता समर्थक। ये जो फोटो आई है अखिलेश यादव के साथ, एक फोटो आपकी टीवी पे चल रही है, कब की है? क्या है उसके पीछे, कब की है? फोटो कहाँ से ट्वीट किए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ किससे बात करूंगा ये कार्यक्रमों से बात करके करूंगा। नहीं, कहा जा रहा है 2 कैबिनेट मंत्री आएंगे। एक कैबिनेट मंत्री के पास फोन आ गया दिल्ली आला कमान से, जैसे ही आपके इस्तीफे की खबर गई उनको रोकने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? 4 विधायक। बहरहाल ये जानकारी हमें नहीं है, आप बता रहे हैं तो वो जानकारी मेरी हो रही है। लेकिन जब आप बीजेपी में आए थे तब भी तकरीबन 20-25 लोग ऐसे थे जिनको टिकट मिला, तो क्या वो सब आपके साथ जाएंगे? अब स्वाभाविक रूप से कौन जाता है कौन नहीं आता है बात करने की बात तय होगा। तब तक तय करेंगे। अब चुनाव तो बहुत कम दिन मैंने है। बोल दिया ना 1-2 दिन के अंदर सब चुनाव समिति में आपको जगह नहीं मिली, इसलिए आपने ये भी नाराजगी की देखिए, वजह मैं चुनाव समिति ना पहले था ना आज, इसलिए वो महत्व नहीं है। महत्व सम्मान और अपमान का, उपेक्षा का। तो कई और भी लोग तो उपेक्षा हुई है, महसूस किस कर रहे तरीके की उपेक्षा हुई है? कई और लोग भी तो उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे सर मंत्रिमंडल में आपके साथी। अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा जिस तरीके से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया और यहाँ तक कि शिक्षक भर्ती में इन्होंने बाद में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो पिछड़ों को वंचित किया गया था उसको अलग से इन्होंने पत्र भी
सौंपा, नियुक्ति पत्र भी दिया। और यही नहीं, आज नॉट सुटेबल फॉर फला पोस्ट ये कहकर के उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इंटरव्यू के आधार पर मालूम नहीं कितने आईएएस बनाए गए, इसमें एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं है। ऐसी सी तमाम बातें हैं, मैं एक एक करके सबको आपके सामने रखूंगा। एक दो दिन में हम माने क्या करे जाएंगे? हाँ, मैं एक दो दिन के अंदर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये भी स्पष्ट कर दूंगा। और साथ ही साथ कुल मिलाकर के कार्यकर्ता और समर्थकों से बातचीत करने के बाद किसी बड़े नेता का फोन आया बीजेपी के अभी तक आपके पास? वो लगातार आ रहा है और लगातार आ रहा है। आप बीच में प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे थे, वो भी आपको हर मंच पर ले जाते नहीं, थे, हमने उसके बाद ऐसी क्या नाराजगी होगी? इसीलिए मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह प्यार के लिए मैं उनको धन्यवाद। लेकिन नाराजगी आपकी कहीं न कहीं क्या प्रदेश वैचारिक रूप से नाराजगी है। मैं वैचारिक रूप से जो दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे मोटे व्यापारियों के खिलाफ इनका लगातार रवैया है, उसके खिलाफ खोल दीजिए भैया। हमारा ये विरोध। तो बीजेपी 300 प्लस की बात करिए, अब हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब हाँ खोल दीजिए। इसका भी उत्तर मैं दूंगा, इसका भी मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। आपने अपने और जन्मदिन के दिन आपने कहा था, आपने अपने जन्मदिन स्वामी के कहा प्रसाद था, मौर्य के पीछे जनाधार कितना है ये 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। मतलब उपेक्षा आप हुई बीजेपी को आपकी, हराने किसी के से लिए नाराज आप हुए। कुछ करेंगे। मैं हमारा जनाधार कितना है उनको अब आभास होगा जब 2022 के चुनाव में। आपने ये भी कहा था अपने जन्मदिन के दिन कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य से टकराया वो नेस्ता नाबूद हो जाता है, वही स्वाभाविक रूप बात। से इसका सीधे सीधे आपके पास दृष्टांत है। पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मालती जी को बहुत घमंड था कि एको हम द्वितीयो नास्ति, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और तो वैचारिक मतभेद पर टकराहट हुई, नतीजा आपने देखा कि आज बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, आज वो आंकड़े और दहाई पहुंच गया। तो आपका बीजेपी रुख को हराने के समाजवादी लिए पार्टी आप की तरफ पूरा है। कैंपेन करेंगे इस आपका बार। रुख समाजवादी पार्टी की बीजेपी तरफ को है हराने के लिए। लेकिन एक वक्त था 1995 में आप ही ने मुलायम सिंह का विरोध भी किया था। परिस्थितियों के अनुसार मैं वैचारिक रूप से किसी से भी टकराता हूँ। सम्मान और स्वाभिमान मेरी पहली थाती है और इससे मैं कोई समझौता नहीं करता। कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई आपने इस बार? मैं बातचीत कर रहा हूँ लगातार। कुछ तो ये बताइए कि बीजेपी के लिए क्या रहेगा? कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं आपके साथ। हेलो, हाँ हेलो, कुछ विधायक भी आ रहे बीजेपी हैं। के लिए क्या मैसेज देंगे? हेलो, बीजेपी के लिए जो मैसेज देना था मैंने दे दिया। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य बात नहीं कर रहे हैं आप। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। हमारे साथ से फोन पर आपसे बात मैंने नहीं मौर्य कर साहब रहे हैं। आपसे मैंने इंटरव्यू किया था वैसे पर आपसे मैंने इंटरव्यू किया था और आपने सब लोग कर रहे हैं भाई साहब, सब लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सभी हो रहा भैया। आपने बात सभी हो रहा कमान से। देखिए, मैंने पत्र में उस बात का उल्लेख कर दिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ, जिसमें साफ साफ स्पष्ट है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार की नीति चल रही है, घोर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल में भी और बाहर भी नेताओं से बात किया, लेकिन उन लोगों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबूजी आपका दो दिन पहले अंततः बाबूजी 2 दिन पहले मैंने आज आपसे मैं बात की थी। इस्तीफा दिया हूँ। बाबूजी 2 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी। अचानक क्या हुआ बाबूजी, अचानक क्या हुआ? लोगों को अब 2 टिकट दिन नहीं पहले मिल मैंने रहा था, बात की थी इसलिए नाराजगी में आप चले गए। टिकट किसको मिलेगा किसे नहीं मिलेगा मैं तय करूंगा, इसलिए बात इसकी नहीं है। बात अगर टिकट हमें 2 गुना दे दे तो भी अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट बाबूजी, लेकिन सम्मान बहुत किसने ही किया? बात नहीं समझ में आई। 5 साल बाद नहीं समझ में आया। बाबूजी आपको 5 साल में आपका समझ में असम्मान आया किसने ये? किया? बाबूजी असम्मान किसने किया? वैचारिक रूप से हाँ दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का रवैया सदैव रहा है। इस विषय पर बात किया, उसको इग्नोर किया गया, नतीजा हुआ कि आज मैं इस्तीफा दे एक रहा हूं। सीधा सवाल आप सपा में जाएंगे या उठाई दिया समय समय पर किसने कहा था? यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी मैंने कही आपने कहा सुना नहीं आप आपको? सपा में जाएंगे या आपको सुना नहीं अपना गया? अलग पार्टी सुना नहीं बनेंगे? दिया आपको? एक बार पूछेंगे या 10 बार पूछेंगे, मैं यही बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद मेरा अगला निर्णय आपकी होगा। तस्वीर आई है आप अखिलेश यादव के साथ में, अमित शाह तस्वीर के आ गई आपकी। आप मेरी तस्वीर अपने साथ भी लगा सकते हैं। नहीं आप अमित जाएंगे शाह सपा की में? सपा में बैठक जाएंगे आप? काशी में गए, आप जेपी सपा में नड्डा आए, जाएंगे? वहां पर भी आप बैठक में रहे, हर जगह आपने पार्टी की बात रखी। बैठक में इस्तीफा देने के पहले मैं किस पार्टी के सभी कार्यक्रमों में एक निष्ठा
पूर्वक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हर जगह पहुंचा। अच्छा अब ये बताइए कि सरकार राजभवन किसकी बनती है, जाएंगे क्या लग रहा है आपको अभी? आप? किसी दूसरे की लग रही है राजभवन आपको? मेरा इस्तीफा पहुंच गया है। सरकार किसकी बनती हुई लग रही है आपको अभी आज की स्थिति में? मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार हम जहाँ रहेंगे वहाँ बनेगी। जहाँ आप रहेंगे और कहाँ आप रहेंगे कहाँ रहेंगे बाबूजी? अब हम तय करेंगे कहाँ रहेंगे। समाजवादी पार्टी करीब है दिल के तस्वीर तो आपके? आपकी आ गई है, कहाँ आपके दिल के रहेंगे, पास। हाँ। कहाँ रहेंगे, एक दो दिन में ये भी समाचार आपको और मिलेगा। आपके दिल के तस्वीर करीब है सामने आ समाजवादी गई है। पार्टी? आपके दिल के करीब है बाबूजी? आपकी तस्वीर सामने आ गई है सपा के साथ अखिलेश यादव जी के साथ आपकी तस्वीर सामने आई है। अब तस्वीर आप लोग ही हमारा आपने साथ कर दें तो हमें कोई भी एतराज नहीं। लेकिन 1995 में जब आपने मुलायम सिंह यादव का विरोध किया था तब आपने कहा था कि इनके साथ नहीं रहना, फिर आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप जा रहे हैं। बदले प्रवेश में बदला हुआ निर्णय। और आप क्यों